अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत बिजली के शोबे की निजकारी के इक़दामात कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर दीगर जातों और तबकों के लिए भी मुतारिफ करवाई जाए बंधु स्कीम। कामारेड्डी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस लीडर शब्बीर अली ने किया मुतालबा। कागजनगर रुकन असेंबली कोनेरू कोनेप्पा की कामयाब नुमाइंदगी। हुकूमत से मंजूरा 25 लाख रुपए का चेक किया शहीद आर्मी जवान शाकिर हुसैन की फैमिली के हवाले। रचगुंडा पुलिस ने किया इंटरनेशनल ड्रग पेडलिंग रैकेट के 2 अफराद को गिरफ्तार। 50 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त। रचगुंडा पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस ने कत्ल के मुअम्मे को किया हल। अयाज नामी शख्स के कत्ल के जुर्म में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ गरीब आवाम को सब्सिडी पर दी जाने वाली बिजली के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने मरकज़ की नई बिजली पॉलिसी और डिस्कॉम को सब्सिडी वाले बिजली के चार्जेस की पेशगी अदायगी के मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैं वो ज़राअत को मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। కొన్ని రంగాల్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలంటే వాటికి ప్రోత్సహించడానికి సబ్సిడీలు ఉండి తీరాలని చెప్పి నమ్మే నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. ప్రత్యేకించి ఇవాళ తెలంగాణలో దళిత ప్రజానికం కావచ్చు, గిరిజన ప్రజానికం కావచ్చు, వందల వేల సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు, నెట్టివేయబడ్డారు, సామాజికంగా ఆర్థికంగా అణచివేయబడ్డారు. కాబట్టి ఆయా వర్గాలకి క్రాస్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలి. మరి తక్కువ ధరలో విద్యుత్తును అందించాలి. కొన్ని యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా ఇవ్వాలి అని చెప్పి గతంలో 50 యూనిట్లు ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడు 101 యూనిట్లకు కూడా పెంచి మరి ఆ వర్గాలకి ఊరటనిస్తున్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. అదేవిధంగా మనకు అన్నం పెట్టే రైతుకు ఆదరణ లేదు. వ్యవసాయం అంటే ఒక దశలో విరక్తి వచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చిన పాలక వర్గాలు ఆ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలి, రైతాంగాన్ని బ్రతికించుకోవాలి అంటే తప్పకుండా వ్యవసాయ ఖర్చుల్ని తగ్గించాలి, రైతుకు వచ్చే ఆదాయం పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేకించి ఈ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువునైనా ఉత్పత్తి చేసిన వాడే ధర నిర్ణయిస్తాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఒక రైతే తను ఉత్పత్తి చేసి ఎవడో దళారి రైతు ధర నిర్ణయించే పరిస్థితిలో ఉంది. కాబట్టి అనే మాట కూడా స్పష్టంగా చెప్పాను. తప్పకుండా దేశ ప్రజలను ఐక్యం చేస్తాం, దేశ ప్రజలకి ఈ విషయాలను వివరించడం ద్వారా ముందుకు పోవాలన్న లక్ష్యంతోనే నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టిన విషయాన్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికీ తెలియజేశాను. తప్పకుండా దేశవ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్ని చైతన్యం చేస్తాం, అన్ని విషయాలని వివరించి చెప్తాం. ప్రజల్ని కూడగట్టడం ద్వారానే దేనైనా సాధిస్తామన్న విశ్వాసం ఉన్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. कामारेड्डी कस्बे की भवानी रोड के KH स्कूल से कांग्रेस पार्टी दफ्तर तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, रियासती खवातीन विंग सदर सुनीता राव और दीगर ने पैदल दौरा किया और अवाम को मरकज़ की किसान और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने तेलंगाना रियासत में बरसर इख्तिदार BRS पार्टी की पॉलिसियों से किसको फ़ायदा हो रहा है के बारे में भी अवाम को वाकिफ़ करवाया। बाद शब्बीर अली ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर दीगर जातों और तबकों के लिए भी एक बंधु स्कीम मुतारिफ करवाने का मुतालबा किया। డైలీ జరుగుతుంది ఈ ధర్నీ చేయబట్టి ఎన్ని కుటుంబాలు ఇప్పటికే రోడ్డు మీద ఎక్కినాయి. ఎందుకంటే న్యాయం దొరకలేదు, న్యాయం గురించి దొరకలేదు. కలెక్టర్కు పోవాలా, 1200 కట్టాలా, మీ సేవలో పోవాలా, మీ సేవతో వస్తే కలెక్టర్కి ఓపెన్ అవుతుందట, ఆయన థంబ్ ఇంప్రెషన్ పెడతారట, అది ఓపెన్ అవుతుందట, అది ఎప్పుడైతుందో తెలియదు. నా భూమికి అయి ఉన్నది ఇప్పటివరకు మా చెట్ల సర్వే నెంబర్ 242లో 2 ఎకరాల 37 గుంటలు నా భూమి నాకు లేదు.
दलित बंधु बोलो, एमएलए जिसको इका चाहते उसको दे दे। ఈ గవర్నమెంట్ హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దళిత్ బంధులో రాజకీయ నాయకుల ప్రభావం ఉండదంటే కూడా మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేలు చెప్పిన వాళ్ళకే వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. అది మంచిది కాదు. కోర్టు కూడా డైరెక్షన్ ఇచ్చింది, ఇది కాదు మెరిట్లో ఇవ్వాలని. మేము కూడా దానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మెరిట్లో ఇవ్వాలా. వాళ్ళతో సహా మా ట్రైబల్ సోదరులకు, బీసీ సోదరులకు, మైనార్టీ సోదరులకు కూడా దళిత్ బంధు ఎట్లా ఉన్నదో బీసీ బంధు, మైనార్టీ బంధు, మా బంజారా బంధు, ట్రైబల్ బంధు, మహిళా బంధు కూడా అందరికీ మరి డబ్బులు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी और आसिफ जा अव्वलता आसिफ जाही शशुम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सरफ ख़ास के साहिबजादगान ने प्रिंस अजमत जा बहादुर के नवे निज़ाम की हैसियत से तकरूरी का खैर मकदम करते हुए उनके साथ मुकम्मल वफादारी और यंगांगत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि प्रिंस अजमत जा बहादुर ही इस मुकाम और मनसब के हकदार हैं। ऐसा कोई भी फ़र्द जिसका ताल्लुक़ निज़ाम ख़ानदान से नहीं है वो इस मनसब पर फायज नहीं हो सकता। इन ख़यालात का इजहार मजलिस साहिबजादगान के अहदेदारान ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सदर मजलिस साहिबजादगान मीर हशमत अली ख़ां साहिबजादा, मीर विखारुद्दीन अली ख़ां साहिबजादा, मीर फ़िरोज़ अली ख़ां, नवाब फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी साहिबजादा, मीर खादर अली ख़ां और नवाब मीर खमरुद्दीन अली ख़ां आसिफ जा अव्वल के पड़पोते नवाब मीर ज़हीरुद्दीन अली ख़ां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साहिबजादगान के मसाइल से मुताल्लिक़ नवे निज़ाम प्रिंस अजमत जा बहादुर को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि साहिबजादगान की तालीम, सेहत और रिहाइश के मसाइल हैं। मेडिकल अलाउंस एक अहम मसला है। मजलिस साहिबजादगान ने नवे निज़ाम से मुतालबा किया कि साहिबजादगान के लिए एक रेसिडेंशियल कॉलोनी की तामीर के लिए अराज़ी अलॉट की जाए। नवे निज़ाम मीर अजमत अली ख़ान ने सोसाइटी को 5 करोड़ का अतिया देने का वादा किया था, ताहम मजलिस साहिबजादगान ने उसे 20 करोड़ रुपए के अतिये के लिए गुजारिश की है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो इस गुजारिश को कबूल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने मुनक़िद की है, ये सबसे इसका जो ताल्लुक़ है ये कि कल से जो परसों से 2 दिन से जो अफवाह उठ रही थी कि 9th निज़ाम को किसी ने डिक्लेयर किया है। तो आई डोंट वांट टू टेक, हम कोई नाम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको हम कोई तरजीह नहीं दे रहे हैं, वो उतने अहमियत रखते नहीं है। क्योंकि 4500 जो फैमिली मेम्बर्स हमारे हैं, साहिबजादगान हैं 4500 से ज़्यादा, वो मीर अजमत अली जा बहादुर को अपना 9th निज़ाम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके, डिक्लेयर कर चुके हैं और वो मानते हैं क्योंकि ये 8th निज़ाम मीर बरकत अली खां बहादुर की जानशीन है। उनके इंतकाल के बाद और उनके इंतकाल से पहले आपको डिक्लेयर कर दिया गया था कि मीर अजमत अली 9th निज़ाम होंगे और अगर कोई निज़ाम बनेंगे तो वो हमारी फैमिली से ही होंगे। और जो ट्रेडिशन चलता आया है फर्स्ट निज़ाम मीर खमरुद्दीन अली खां बहादुर से, उसी तरह से चलता रहेगा और ताक़यामत तक इंशाअल्लाह निज़ाम जो है वो अपने औलादों के उनके अपने औलादों से बनते रहेंगे। हमारे 8 निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खां साहब का जो इंतकाल हुआ था, उसी दिन रात में हमारे फैमिली के जो लोग ऐलान कर चुके हैं कि नए निज़ाम हम अजमत अली खां बहादुर को मान चुके हैं। फिर ज़ियारत के बाद जो ऐलान किए हैं कि हमारे को ये नहीं चाहिए, तो इसके मायना क्या है और आप किसको बनाना चाह रहे हैं? जो वारिस तो वारिस ही होता है, दूसरा नहीं आ सकता। कोई यार खां हमारा बड़ा नहीं बन सकता। आप लोगों के ज़रिए मैं पूरे साहिबजादा तबक़ात से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप किसी के बात हमें मत आइए। और नवाब मीर बरकत अली खां के जो जानशीन है वो अजमत जहाँ बहादुरी रहेंगे, वो तो ख़ानदानी वारिस है, वो हमको एक्सेप्ट हो हमारे ख़ानदान के सामने रख रहे हैं कि हमारे जो नए निज़ाम है अजमत जहाँ बहादुरी रहेंगे और हम मरते दम तक उनका सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के अहदेदारों ने हैदराबाद के मासाब टैंक के बस्तीवाड़ा इलाके में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। बाज़ अफराद ने GHMC स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ये गैर मजाज मकानात तामीर किए थे और बरसों से यहाँ मुकीम थे। हुकाम ने बताया कि मकानात खाली करने के लिए माजी में मुतादिद बार नोटिसें जारी की गई, जिसके बावजूद इन मकानात का तख्लिया नहीं किया गया।
साल 2020 अक्टूबर के महीने में लद्दाख में शहीद होने वाले कागजनगर के आर्मी जवान शाकिर हुसैन की फैमिली को रुकन असेंबली कोनेरू कोनेपा की हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी पर 25 लाख रुपए मंजूर किए गए। आज रुकन असेंबली कोनेरू कोनेपा ने कागजनगर म्युनिसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन के हमरा शहीद शाकिर हुसैन के घर पहुंचकर मंजूरा 25 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक उनके वालिद के हवाले किया। इस मौके पर रिटायर्ड आर्मी यूनियन कोमरम भीम आसिफाबाद जिला सदर अब्दुल नईम, मार्केट कमेटी चेयरमैन के श्रीनिवास, म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन गिरीश कुमार, बीआरएस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सदर जाकिर शरीफ, बीआरएस यूथ प्रेसिडेंट E.A. वसीम, वार्ड काउंसलर्स, माइनॉरिटी लीडर्स मोहम्मद सिद्दीक, सैयद हाजी व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद यूथ कांग्रेस असेंबली सदर अरफात अहमद खान की क़यादत और आदिलाबाद टाउन सदर अखिलती सेल मोहम्मद मोहसिन पटेल की निगरानी में पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राहुल मुजा से मुलाकात करते हुए मुसलमानों के रिजर्वेशन को 4 से बढ़ाकर 12% करने और वक्फ इमलाक और इदारों की दोबारा इख्तिरा के लिए टेंडर तलब करने एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर आदिलाबाद यूथ कांग्रेस असेंबली सदर अरफात अहमद खान ने बात करते हुए कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति ने तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत के मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की फरहमी का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सीएम केसीआर से फौरी अपने वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। 12% रिजर्वेशन की अदम फरहमी पर भूख हड़ताल का इंतबा दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान अफरोज़ खान, रसूल खान, अन्नू भाई, शेख जुनेद, रहीम और दीगर मौजूद थे। आज उसी मामले पे भी हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को कहा कि 13 करोड़ के टेंडर्स जल्द से जल्द डाले जाए और पंचायत राज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलकर हमने बात की तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो ये 13 करोड़ आए हैं थोड़े उसमें गुलजार मस्जिद और अब जामा मस्जिद जिसको 2 करोड़ सैंक्शन हुए थे जामा मस्जिद को और गुलजार मस्जिद को 30 लाख रुपए जो सैंक्शन हुए थे वो रिलीज होना बोल के हम बोले तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बोले जो पुराने काम हो गए उनके लिए पैसे सैंक्शन नहीं करेंगे, जिसका काम होना बाकी है उनको ये पैसे सैंक्शन करेंगे। डॉक्टर अतीक बेगम ज़ौजा डॉक्टर आजम अली खान असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स की जानिब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक प्रोफेसर एस इंदिराकांत की ज़ेर निगरानी में तहरीर करदा किताब तेलंगाना में बैन इलाकाई तफावुत की 11 फरवरी को समाजी तरक्की हैदराबाद में मुनक़िदा तेलंगाना इकोनॉमिक एसोसिएशन की 7वीं कॉन्फ्रेंस में रस्मी इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर डॉक्टर अतीक बेगम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स ने बताया कि ये किताब हुकूमत के लिए अज़ला के दरमियान तफावुत को जानने के लिए बहुत मुफीद है। उनका कहना था कि ये किताब तलबा के लिए तमाम मुसाबक़ाती इम्तहानात के लिए भी मुफीद है। इस मौके पर रिश्तेदारों और उनके अमले की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। सहाफ़ियों पर हमले की TWJ यूनियन मजम्मत करती है। TWJ H143 पीर की रात ज़िला आदिलाबाद के इचोड़ा मंडल सेंटर में एक सहाफ़ी के घर में मुनक़िदा तकरीब में 2 सहाफ़ियों पर इचोड़ा के MPP प्रीतम रेड्डी, एक और होमगार्ड विजय की जानिब से किए गए जिस्मानी हमले की सख्त मजम्मत की। वाज़ेह को इचोड़ा के सहाफ़ियों खमरुद्दीन और लक्ष्मण पर मुनसिफाना खबरों की इशाअत से बौखलाहट का शिकार अफराद ने सहाफ़त की आज़ादी को नज़रअंदाज करते हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और उन पर जिस्मानी तौर पर हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। इसी सिलसिले में आज मंगल को बोध हल्के के सहाफ़ियों ने ज़िला SP आदिलाबाद से मुलाकात की और MPP की जानिब से सहाफ़ियों पर हमलों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर सहाफ़ियों ने इचोड़ा MPP पर सख्त कार्रवाई जबकि होमगार्ड को मुअत्तल करके इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए TUWJ के ज़िला सदर B रमेश ने हक़ाइक़ पर मुबनी आर्टिकल लिखने वाले सहाफ़ियों पर सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने प्रीतम रेड्डी को सहाफ़ियों से कौम के सामने मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इचोड़े मंडल में एक जर्नलिस्ट के डॉटर के बर्थडे फंक्शन में अटेंड हुआ था मैं। वहाँ पर मेरे से पहले MPP प्रीतम रेड्डी और होमगार्ड विजय मामिडी विजय कुमार दोनों वहाँ अवेलेबल थे। वो रह गए क्या, वो तो जर्नलिस्टों को गालियाँ देते, गाली गुलश करते हुए हमारे पर कैसा न्यूज़ लिखते बोल के मेरे को
उनके दिल में ऐसा मारा गया है, मेरे आँख यहाँ पे और मेरे पेट में भी मारे। और क्या है सो वहाँ जो अवेलेबल नहीं था वो आदमी को लेकर मेरे ऊपर फेक किसी अट्रॉसिटी केस के काम पेटी भी दिए गए। ये हम हमारे जर्नलिस्ट के यूनियन की तरफ से एसपी सर को भी मिले हैं। सर को भी जो वहाँ हुआ सा इंसिडेंट के पूरे हमारे एक्सप्लेन करें, और क्या है सो वीडियोस और क्या है सो वॉइस रिकॉर्ड भी सर को बताया गया। ये इस पर सख्त एक्शन लेना नहीं लिए तो हम जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से बड़े पैमाने पे एहतजाज करते बोल के మీడియా को డిమాండ్ कर रहे हैं। రాష్ట్రంతో మాత్రాన దాన్ని మనసు పెట్టుకొని కక్ష కట్టి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక భౌతిక దాడి అమరుద్దీన్ అనే క్యాండిడేట్ కడుపులో కన్ను మీద దాడి చేయడము, భౌతిక దాడికి దిగడము, మద్యం దాగి దురుసుగా ప్రవర్తించడము, అంతేకాకుండా లక్ష్మణ్ మీద కూడా దాడికి దిగబడడం అనేది తెలంగాణ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. ఏమైనా జరిగేది ఉంటే వాస్తవంగా మమ్మల్ని పిలవండి. మీకు ఏమైనా జరిగిందా, బ్లాక్మెయిల్ చేసిర్రా, మిమ్మల్ని తిట్టిండా, ఏది లేకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా అధికార బలంతో ఇట్లా చేయడం తప్పు. ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కావద్దని చెప్పి మన బోత్ కాన్సెన్స్కి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా మిత్రులు కూడా ఇటీవల ఎస్పీని కలవడం జరిగింది. మేము ఎస్పీ గారిని కూడా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దాడికి పాల్పడ్డటువంటి నిందితుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంపీపీని తక్షణమే ఆయన మీద హత్యాయత్నం కింద కేసులు నమోదు చేయాలి. खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हनमकुंडा रायपुर की जानिब से ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए ज़रूरी अशिया, दवाइयाँ, सर्दी में पहनने के लिए गर्म कपड़े वगैरह की इमदाद की गई। मोहम्मद ज़ुबैर मालिक ज़ुबैर बुक स्टॉल ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा दौर में हमको चाहिए कि हम तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद करें। तुर्की काउंसलेट की जानिब से जो अशिया की इमदाद की जा सकती है वही चीज़ें यहाँ से भेजी जा रही हैं। इस मौके पर हैदराबाद से तशरीफ़ लाई सोशल एक्टिविस्ट खालिदा परवीन, मोहम्मद जायद और मुकामी लोग मौजूद थे। बरकातहू। अल्लाह का एहसान है कि जो हालिया तुर्की के अंदर ज़लज़ला की ख़बरें आती जा रही थी तो हमारा भी दिल यहाँ से तड़प रहा था कि हम उन मज़लिमों की कुछ मदद कर सकें, लेकिन हम वहाँ तक जा तो नहीं सक रहे थे। लेकिन हमने यहाँ हनमकुंडा शहर यानी हनमकुंडा तेलंगाना इंडिया से हम लोगों ने कुछ सामान, लेडीज़ का, जेंट्स के, बच्चों के पैम्पर्स और थोड़े खाने की अशियात जो भी काउंसलेट से लिस्ट दी गई उस हिसाब से हमने कल एक लारी भर सामान हमारे दोस्त अहबाब के साथ हैदराबाद पहुँचे और वहाँ से सोशल एक्टिविटीज़ खालिदा परवीन साहबा के पास जाकर हम लोगों ने उनके साथ काउंसलेट तक उसको पहुंचा दिया। अल्लाह का एहसान है। मैं तमाम ही इंसानों से, आलमी दुनिया से ख्वाहिश करता हूं कि इन मज़लूमीन की इस वक्त भरपूर ताउन करें, इसलिए कि आए दिन हज़ारों की तादाद में लोग जा बहक होते जा रहे हैं ज़लज़ले के मुतासिरान में, जिसके अंदर छोटे बच्चे, बड़े लोग, मर्द व ख़वातीन शामिल हैं। वो जो मंज़र हम टीवी में देख रहे हैं तब हमारा कलेजा हल रहा है। इसलिए हमने एक छोटा सा काम किया कि हम उन तक तो पूरे चीज़ें नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमसे जो हो सकता दामे दरमे सुखने हमने अहले खैर हजरात से जमा किया और तुर्की के काउंसलेट को हमने हवाला किया। इंटरनेशनल ड्रग पेडलिंग रैकेट के 2 अफराद को मलकाजगिरी एसओटी ने नाचाराम पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से आधा किलो सूडोफेड्रीन ड्रग और 80 ग्राम स्मगलिंग वाला सोना,
एक पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन और नकद रकम 2500 रुपये, जुमला मालियत 55 लाख रुपए की अशिया जब्त कर ली। रचौंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। SOT 1 टीम जिसके कि DCP साहब गिरधर साहब हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने नए पोस्ट को सेंक्शन किए हैं, उसके तहत SOT 1 है जो मलकाजगिर और भोंगेर एरिया देखती है, और SOT 2 जो है LB नगर और महेश्वरम एरिया देखती है। तो SOT 1 को एक क्लूज आए थे जिसके तहत एक इंटरनेशनल सिंथेटिक ड्रग रैकेट यहाँ काम कर रहा है। मलेशिया की तरफ से मंगा के कुछ ड्रग्स हो सकता है कि लोकल सप्लाई करते हो, लेकिन ये बाहर में भिजाने का इन लोगों का नेटवर्क चल रहा था। ये इन्फॉर्मेशन आते ही पूरी रामली इंस्पेक्टर साहब, लोकल नाचाराम के सब इंस्पेक्टर साहब और गिरधर साहब के क्लोज सुपरविजन में इन लोगों ने काम करना शुरू किया, और आज सुबह उसी नेटवर्क के तहत फरीद मोहम्मद अली एक एक्यूज और दूसरा मुजाहिद एलियास फैसल, ये 2 लोग दोनों पूना के रहने वाले हैं। ये सूडो एफेड्राइन, ये ड्रग जो होती है हाईली सिंथेटिक ड्रग है, रिफाइंड ड्रग है। इसकी तकरीबन 500 ग्राम्स, आधा किलो क्वांटिटी इन दोनों लोगों से बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट तकरीबन 50 लाख है। ये ड्रग रैकेट जो है ये इसके अलावा गोल्ड स्मगलिंग में भी करता था और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग भी करता था। और ये ड्रग बहुत जो सिंथेटिक, आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेंजरस ड्रग होती है कि एक बार जिसे टच करने से ही या एक बार टेस्ट करने से ही आदत पड़ जाती है। तो हम हमेशा अपने यूथ को बोलते रहते हैं कि अंडर एनी पीयर प्रेशर या किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में इन ड्रग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जैसा हमारे स्टेट गवर्नमेंट का विजन है कि तेलंगाना में ड्रग्स का नामो निशान जड़ से निकाल देना, उसके तहत हम लोग एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अभी जो बाकी के लोग हैं उनका जाहिर सी बात है आप लोग समझते हैं क्योंकि तफ्तीश अभी चल रही है तो उसके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इस नेटवर्क में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो भी लोग हैं उन लोगों को भी डेफिनेटली उनकी पहचान करने के बाद में कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की। हैदराबाद के थ्रू प्लस लोकल सप्लाई भी हो रहा है, ऐसा SOT टीम 2 को खबर मिली थी। तो कुछ दिनों पहले उसके तहत करीब 10 किलो गांजा बरामद किया था उस टीम में, कुछ एक्यूज को पकड़ा गया था। और उसी केस में आज कुछ नए सप्लायर्स, नेटवर्क और डीलर्स की पहचान की गई है। मेनली जिसमें ये केजीज में गांजा थोड़ा सा हैदराबाद में जो इतना रिक्वायरमेंट हो उसके बाद में महाराष्ट्र को भेजते हैं। तो इधर आंध्र प्रदेश की तरफ से आता है और हैदराबाद प्लस महाराष्ट्र का पूरा ये सप्लाई रूट है। इस पूरे रूट में हमारे पास अभी भी एक इम्पॉर्टेंट कुछ क्लूज हैं, उस पर हमारी SOT काम कर रही है। जल्दी से जल्द उस नेटवर्क को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाएगा। उसके तहत मैं ये भी एक बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये ड्रग्स के धंधे में मशगूल हैं और उनको रिपीटेड एक के बाद एक ऑफेंस करते जा रहे हैं, उसमें कानून के मुताबिक हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ के तेलंगाना के जो यूथ हैं उनकी ज़िंदगी और उनकी कैरियर बर्बाद करने का मौका किसी को नहीं दिया जाएगा और उसके खिलाफ जो भी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत 4 ड्रग डीलर के खिलाफ में हम लोगों ने PD एक्ट में उनको तामील करके जेल भेजने का काम किया है और ये कार्रवाई अब आगे भी जारी रहेगी। हैदराबाद के पुराने शहर के काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद ताड़वन इलाके के एक मकान में आग लगने का हादसा पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मुकामी लोगों की मदद से मकीनों को बाहिफाजत बाहर निकाला। इस दौरान फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी गई, जिस पर फायर फाइटर्स ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शहर हैदराबाद की मुगलपुरा पुलिस ने 32 क्विंटल PDS राइस को गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल कर रहे 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनकी शनाख्त जाफर और खादर के तौर पर की गई है। बाद गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और फलकनुमा पुलिस ने संजय गांधी नगर में पेश आए अयाज नामी शख्स के कत्ल के जुर्म में 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 चाकू और एक पल्सर बाइक जब्त कर ली। फलकनुमा ACP शेख जहांगीर ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। ये लोगों को झगड़ा हुआ तो उसके बाद में ये मरहूम जो है उनका घर काला पत्थर एरिया को शिफ्ट करे, लेकिन इनका वालदा शाकिरा बेगम बोल के इनका बेटा आसिफ ये काला पत्थर पुलिस स्टेशन में इनका सस्पेक्ट शीट है, इनको इंस्टिगेट करे, इनको उसको कत्ल कैसा भी करना है। इन्हें ऑलरेडी तुम्हारा चाचा को मार डाला और मेरे से भी लड़ा बोल के बच्चे को फोन करे तो ना आसिफ आया और उसका दोस्त
इन्हें शेख खालिद अलियास करेंसी खालिद, ये काला पत्थर का राउडी शीटर है, और इनका दोस्त मोहम्मद अफरोज खान, इन्हों 7 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी है इन्हों, और नदीम कुरैशी। ये नदीम कुरैशी भी ये फलकनुमा पुलिस स्टेशन में सस्पेक्ट शीट है, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इससे पहले अरेस्ट कर रहे थे। ये लोगों को मिला लेके इनका रेकी करके इनको मर्डर किए। इसमें ये लोगों को, मुलजिमों को गिरफ्तार करने में हमारे फलकनुमा पुलिस और टास्क फोर्स जो सो अहम रोल करे। उस दिन से हमारे टास्क फोर्स साउथ जोन टीम जो है सो राघवेंद्र इंस्पेक्टर और गुमी चक्रवर्ती साहब के सदारत में बहुत कुछ मदद करे। इसमें हम लोग ये लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में कर रहे हैं, और फर्दर इसमें एविडेंसेस भी, टेक्निकल एविडेंसेस और ये पूरा इकट्ठा करके चार्जशीट करेंगे। और इस सिलसिले में बोलने क्या है तो आप लोगों को पब्लिक से गुजारिश है, ये लेट नाइट रहने से ये ऐसे लोग मिलकर बात करने के वास्ते एक अड्डा बन जा रहा, उसीलिए हम लोग चबूतरा कर रहे हैं। और हर माँ बाप भी बच्चों को ऐसे फिरने से, किसी से मिलने से रोक दो। एक बार आप लोग भी आपके बच्चों को देखो, एक मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ बोल तो एक आदमी का नहीं, वो फैमिली पूरा बर्बाद होता। छोटी छोटी गलतियां करके आप लोगों से गुजारिश है कि छोटी छोटी गलतियां करके आप लोग भी राउडी शीटर मत बनो। और हमारे सीपी साहब, सीवी आनंद साहब आने के बाद हमारे डीसीपी साहब थोड़े राउडी शीटर्स जो अच्छे रह रहे हैं वो लोगों का राउडी शीट्स निकाले। फिर भी आप लोगों से सबसे राउडी शीटर्स पे कुछ भी आप लोगों को कंप्लेंट है, बेतुका आप लोगों का कंप्लेंट कर सकते हैं, डायल 100 नंबर को कॉल कर सकते, हमारे सीपी साहब पे नजर में जाता। ऐसा ये राउडी शीटर्स के कारनामों पे सीपी साहब हमारे लोगों को भी, टास्क फोर्स वालों को भी खड़ी नजर रखने के लिए हमारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए साहब। अब सबसे गुजारिश है, ऐसे चीज नहीं होना चाहिए, ये कत्ल करना, ये नशा करना, ये पूरे गलत चीजें हैं। आप लोगों का मुस्तकबिल नहीं कर लेना, खराब नहीं कर लेना। जिला निर्मल के शहर भैंसा में ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी का काम जारी है। पुलिस अहदेदारों ने आज भैंसा के बस स्टैंड और चेक पोस्ट इलाके में ये मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने बिना नंबर प्लेट नंबर के साथ छेड़छाड़, बगैर दस्तावेजात के चलाई जा रही गाड़ियों को सीज कर लिया और अवाम को गाड़ियों के दस्तावेजात साथ रखने और नंबर प्लेट्स को दुरुस्त करने का मशवरा दिया। ఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకి వితౌట్ నెంబర్ ప్లేట్, ఇంప్రాపర్గా ఉన్నటువంటి నెంబర్ ప్లేట్ల వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ డ్రైవ్లో భాగంగా ఈరోజు నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా ఉన్నటువంటి బండ్లు, అదేవిధంగా నెంబర్ ప్లేట్ సరిగ్గా లేనటువంటి బండ్లు, అదేవిధంగా కొన్ని రోజుల నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని కొన్ని బండ్లని ఈరోజు మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది। మీరు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు, అందాజా ఒక 20 to 30 ఇన్ బిట్వీన్ వెహికల్స్ మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది। వీటన్నిటిని కూడా నెంబర్ ప్లేట్స్ వాటన్నిటిని కూడా ప్రాపర్గా చేసిన తర్వాత వెహికల్స్ని వదిలివేయడం జరుగుతుంది। బైన్సా పట్టణంలోని ప్రజలందరికీ తెలియజేయనిది ఏమనగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ యొక్క వెహికల్ డాక్యుమెంట్స్, అదేవిధంగా నెంబర్ ప్లేట్స్, వెహికల్స్కి కూడా నెంబర్ ప్లేట్స్ అందరు పెట్టుకొని మంచి డిసిప్లిన్తో ఉండాలని కోరుతాం। दो जगह करें सर, चेक पोस्ट पे, ओल्ड आरटीओ चेक पोस्ट మరి బైన్సా బస్ స్టాండ్లో ఈరోజు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। दुर्गा प्रसाद बॉक्सिंग एकेडमी निज़ाम कॉलेज हैदराबाद के बॉक्सर खिलाड़ी अरशद इब्राहिम हुसैन ने शहर हैदराबाद में भगत सिंह बॉक्सिंग क्लब के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा अंडर 14 48 से 50 किलो वज़न के ज़ुमरे में गोल्ड मेडल जीता। इन मुकाबलों का इनेकाद प्रदीप की निगरानी में किया गया। ये एक इंटर क्लब इवेंट था जिसमें हैदराबाद के 8 मशहूर बॉक्सिंग क्लबों ने हिस्सा लिया। वरंगल में वाक़ दरगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तक़ारीब में रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िम्मेदारान नवीद बाबा और उबैद बाबा ने रुकन असम्बली का खैर मकदम किया और उनके हक़ में खुसूसी दुआ की। इस मौके पर बात करते हुए रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने कहा कि वो हर साल उर्स तक़ारीब में शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि उर्स के हवाले से बुज़ुर्गों ने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने हुकूमत की तवज्जो दिलाई और तमाम इंतज़ामात को यकीनी बनाया। उनका कहना था कि न सिर्फ इस साल बल्कि हर साल उर्स के लिए मज़ीद अज़ीम व शान तक़रीबात मुनक़्क़िद करने की कोशिश की जाएगी और दरगाह की तरक्की के लिए भी खुसूसी इंतज़ामात किए जाएंगे। उर्स तक़ारीब में मुकामी कॉरपोरेटर के अलावा दीगर डिवीज़नों के कॉरपोरेटर्स और अहम कायदीन और शख्सियात ने भी शिरकत की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
मरकजी हुकूमत बिजली के शोबे की निजकारी के इक़दाम कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर दीगर जातों और तबकों के लिए भी मुतारिफ करवाई जाए बंधु स्कीम। कामारेड्डी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस लीडर शब्बीर अली ने किया मुतालबा। कागजनगर रुकन असेंबली कोनेरू कोनेप्पा की कामयाब नुमाइंदगी। हुकूमत से मंजूरा 25 लाख रुपए का चेक किया। शहीद आर्मी जवान शाकिर हुसैन की फैमिली के हवाले। रचगुंडा पुलिस ने किया इंटरनेशनल ड्रग पेडलिंग रैकेट के 2 अफराद को गिरफ्तार। 50 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त। रचगुंडा पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस ने कत्ल के मुअम्मे को किया हल। अयाज नामी शख्स के कत्ल के जुर्म में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।